Good afternoon, students. Today we will discuss the blotting techniques. So, blotting are the techniques for transferring DNA and RNA and proteins from the gel onto a carrier so they can be separated. Means, if we do the gel electrophoresis is the process by which we can separate DNA or RNA according to their molecular weight when any charge applies to that gel. So gel electrophoresis, how we can find out the DNA, RNA, है ना? So DNA and RNA are very delicate. On the gels, we cannot perform any experiment for the further analysis of DNA and RNA. So we have to transfer that DNA and RNA and proteins from the gels onto some carrier. Carriers are like nitrocellulose membrane or some cellulose papers are there, so that we can further perform our experiment on that paper. So blots are the technique for transferring DNA, RNA and protein onto a carrier so that they can be separated by following the use of gel electrophoresis. So southern technique is used for the southern. There are three different types of blotting techniques: southern blotting, northern blotting and western blotting. So southern blotting is used for the transferring DNA, northern blotting is used for transferring of RNA, and western blotting is used for the transferring of protein. So how many types of blotting techniques are there? There are three types of blotting techniques: southern blotting, northern blotting and western blotting. Next, so types of blotting, here it is written as blotting techniques: southern blot, northern blot, western blot. Southern blot is used to detect DNA, northern blot is used to detect RNA and western blot is used to detect protein. Now the first, southern blot. So southern blot is the technique. It was discovered by the Professor Sir Edwin Southern, Professor of Biochemistry and Fellow of Trinity, developed this technique in 1975. Southern, so नेम कैसे इसका नाम आया? क्योंकि इनका नाम ही साउदर्न था, इनका जो टाइटल था वो साउदर्न था, इसलिए इस टेक्निक का नाम साउदर्न आया. तो साउदर्न won the Lasker Award for Clinical Medical Research prize for the method of finding specific DNA sequence. He developed this procedure at Edinburgh University more than 33 years ago. Okay, so this technique is known as DNA transfer or southern blotting. So he was the scientist. His name was Professor Sir Edwin Southern. So this technique involves three steps. First step is separation, then transfer and then hybridization steps. So it is the method which is routinely used in the molecular biology for detection of specific DNA sequence in the DNA samples. The DNA detected can be a single gene or it can be a part of large piece of DNA such as viral genome. So this technique is used for the detection of DNA samples. So DNA, it can be single stranded or it can be a double stranded also. So first we have to separate out the DNA. Okay, so separation of DNA कैसे होगा? separation of DNA, तो separation of DNA हम अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे. ठीक है, तो साउदर्न ब्लॉटिंग कंबाइंस अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ DNA with method to transfer the size separated DNA to filter membrane for probe hybridization. तो यहाँ पे 3 मेथड्स कंबाइन हो गए. पहले सेपरेशन, फिर आपका आता है
ट्रांसफ़र एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या करेंगे, आइसोलेशन और सेपरेशन करेंगे डीएनए का। फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरिंग मेथड, किसके ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। और देन फाइनली हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स। ठीक है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। तो process of forming a double stranded DNA molecule between a single stranded DNA probe and a single stranded target patient DNA। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। कैसे बनेगा ये, जब पहले यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए करवाएंगे और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम फिर कंबाइन करवाएंगे किसी प्रोब के साथ जो कि ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। दोनों डीएनए कंबाइन होके अगर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे एक्चुअली जो डीएनए जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास प्रोब्स होते हैं जो कि उसके अंदर जो सीक्वेंसेस होंगी वो कैसे होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों डीएनए कंबाइन होंगे और इट बिकम्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये साउदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड, मतलब डीएनए इज सेपरेटेड, डीएनए आर इम्बोबलाइज्ड ऑन द मैट्रिक्स, प्रोब इज एडेड टू द मैट्रिक्स टू बाइंड to the molecules. Matrix here means nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane में DNA fix हो जाता है. Then probe we are adding. Any unbound probes are then removed by washing. Washing से हम remove कर देंगे. And the place where probe is connected corresponds to the location of immobilized target molecule. और जहाँ पे भी probe attached हो जाएंगे वो होगा उस location को हम we can find out by the लोकेशन ऑफ इमोबिलाइज्ड टारगेट मॉलिक्यूल। तो उस इमोबिलाइजेशन यहाँ पे कहाँ हो रहा है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली अपैरेटस यूज होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जहाँ पे हम अग्रोज की एक लेयर बनाएंगे किसके ऊपर, ये जो आपको प्लास्टिक की ट्रे दिख रही है, सबसे पहले हम अग्रोज जेल यहाँ पे कास्ट करेंगे। अग्रोज जेल कास्ट करते समय ही हम कोम्स लगा देते हैं जिसके कारण जितने भी सैंपल्स वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वो उसको हम जब कोम निकालते हैं तो एक वेल्स टाइप की क्रिएशन हो जाता है। उन वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोम लगा हुआ है। इन कोम्स आफ्टर रिमूविंग द कोम्स after removing the combs we get the wells, है ना। और वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अपना सैंपल प्लेस्ड करते हैं और जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं तो जेल्स क्या हो जाता है, उसमें डीएनए सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए सैंपल को क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। फिर ये कुछ और दूसरे वॉटमैन फिल्टर पेपर्स हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इस तरीके के आपको दिखती है यहाँ पे, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है पर हाँ यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इस बॉक्स के अंदर है। और ये वॉटमैन फिल्टर पेपर जब आप ट्रांसफरिंग ऑफ जेल करोगे टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तो हमको वॉटमैन फिल्टर पेपर्स चाहिए पड़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें हम साउदर्न ब्लॉटिंग पूरा सेटअप है जिसमें ये अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना। यहाँ पे जेल से आपका डीएनए सेपरेट आउट हो चुका है, ये जेल है। जेल के ऊपर हम मेम्ब्रेन, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रखेंगे। फिर हम 3-4 शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर रखेंगे। ठीक है, 3-4 शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर करेंगे और फिर आपका क्या आएगा, पेपर टिश्यूज़, सम पेपर टिश्यूज़, नैपकिन्स ये सब रहती हैं, उसको हम रख देंगे। और फिर एक ग्लास प्लेट रहती है। ठीक है, ग्लास प्लेट रहती है और उसके ऊपर एक स्लाइटली थोड़ा सा हैवी प्लास्टिक मटेरियल टाइप वेट होता है जिससे कि हम ये पूरा सेटअप फॉर्म करते हैं बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ जेल टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन।
और उसके बाद फिर से इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, जिससे कि जितना भी मटेरियल आपका डीएनए जो आपका यहाँ पे जेल में सेपरेट आउट हुआ है वो आपका मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो स्टेप्स हैं साउदर्न ब्लॉटिंग के, पहले हमको क्या करना है, डाइजेस्ट डीएनए विथ एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो भी हमने डीएनए आइसोलेट किया है उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू क्या करेंगे, पहले डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर दैट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुई थी, सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट द फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो इस तरीके से जो हमने बताया था कि अग्रोज जेल को हम कास्ट करते हैं ट्रे के ऊपर, ट्रे में कॉम लगा देते हैं, निकालते हैं तो वेल क्रिएट हो जाता है। वेल में हम सैंपल प्लेस करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डीएनए, और अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर साइज डीएनए सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट प्रेजेंट इन द जेल्स आर डीनेचर्ड विद द एल्कलाई। जो ये डीएनए सेपरेट आउट हुआ है उसको हम एल्कली ट्रीटमेंट देते हैं। एल्कली ट्रीटमेंट से क्या होता है, वो डीनेचर्ड हो जाती हैं और दे बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए यहाँ पे जेल पे बचा है, दैट इज ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर और नाइलोन मेम्ब्रेन बाय ब्लॉटिंग टेक्निक। जो ब्लॉटिंग टेक्निक हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये यहाँ पे आती है कि ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस प्रोसीजर प्रिजर्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रैगमेंट इन द जेल एंड क्रिएट रेप्लिका ऑफ जेल ऑन द फिल्टर। तो ब्लॉटिंग का क्या मतलब है कि हम एक रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं। जो जेल में जो चीज़ें थी, जो जेल बहुत डेलिकेट थी, उस डेलिकेट जेल के ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेटिव एक वो चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, जिसमें कि हम रिपीटेटिवली एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इसलिए हम मेम्ब्रेन के ऊपर उस डीएनए पार्टिकल्स को पूरा ट्रांसफ़र करते हैं। तो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स क्या कि द फिल्टर इज़ इनक्यूबेटेड अंडर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन। जैसे ही कि आपकी ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ये पूरा जेल का मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, देन वी क्या करते हैं, इस फिल्टर पे जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसको हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं, किससे, स्पेसिफिक रेडियो लेवल डीएनए प्रोब से। ठीक है, और ये डीएनए प्रोब फिर हाइब्रिडाइज हो जाता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए का तो वो उससे बाइंड हो जाएगा, और आफ्टर बाइंडिंग जो एक्सेस प्रोब्स हैं, है ना, वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे वॉशिंग के स्टेप्स के दौरान, एंड द प्रोब बाउंड टू द फिल्टर इज डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी के से हम क्या कर लेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे, विच रिवील्स द डीएनए फ्रैगमेंट टू विच द प्रोब हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरीके से जहाँ पे भी हमारा स्पेसिफिक डीएनए होता है और जो हमको फाइंड आउट करना है वो प्रोब की हेल्प से आपका डीएनए आइसोलेट और फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक थी। इसमें आपको इन शॉर्ट ये पूरा डायग्राम बताया है कि कैसे हम पहले डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन करने के बाद हम इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे बाय ब्लॉटिंग टेक्निक। आफ्टर ब्लॉटिंग हम मेम्ब्रेन को डीएनए जो आपके ट्रांसफ़र हो गए मेम्ब्रेन में, ये बैंड्स आ गए हैं, जैसे जेल में थे वैसे ही सेम बैंड्स आपके मेम्ब्रेन में आ गए हैं और उसको फिर फर्दर हम प्रोब्स की हेल्प से जहाँ जहाँ हमारा स्पेसिफिक डीएनए है जो हमको चाहिए था, वो प्रोब्स की हेल्प से हमको वापस मिल जाता है। एंड बाउंड डीएनए बैंड्स आर एक्सपोज्ड ऑन द फिल्म्स। और जो भी जहाँ जहाँ प्रोब्स आपका बाइंड हुआ है वो प्रोब हम ऑटो रेडियोग्राफी की टूल से एक्सपोज करवा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ हमारा टारगेटेड डीएनए या स्पेसिफिक डीएनए है। तो इस तरीके से हम ये जो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको पिक्चर कि आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल था, जेल को हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया।
यहाँ पे बहुत सारे वॉटमैन फिल्टर पेपर लगाए हैं, फिर स्टैक ऑफ पेपर टॉवल्स लगाए हैं, पेपर नैपकिन्स लगाए हैं। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ जेल टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इस तरीके से आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन दिखती है ना। ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिर फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोव को यूज़ करेंगे। प्रोव्स की हेल्प से आपको जो आपके स्पेसिफिक बैंड्स हैं डीएनए के वो आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए थे। तो इस तरीके से साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स की जाती हैं। एप्लीकेशन क्या है साउदर्न ब्लॉटिंग का कि इट इज़ यूज्ड इन द जीन डिस्कवरी, है ना। अगर कोई जीन फाइंड आउट होता है तो उसकी डिस्कवरीज के लिए हेल्पफुल रहता है ये। मैपिंग प्रोसेस के लिए, इवोल्यूशंस जो डिफरेंट इवोल्यूशंस हुए हैं उनकी मैपिंग करने के लिए, डेवलपमेंट स्टडीज़ करने के लिए, डायग्नोस्टिक एंड फॉरेंसिक स्टडीज़ करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स आजकल बहुत यूज़ हो रही हैं। इन सब में आपका ये ब्लॉटिंग टेक्निक ही यूज़ होती है। जहाँ पे डीएनए के ऊपर काम होता है, सारी चीज़ें आपकी डीएनए साउदर्न ब्लॉट से ही की जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ RFLP मैप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर्ड जीन इन ट्रांसजेनिक एंड इंडिविजुअल्स। अगर आपने किसी इंडिविजुअल का जीन चेंज किया है तो फिर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको ये मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। और भी डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स टू मेजर रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स, कंपैरिजन करने के लिए, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर बिट ऑफ डीएनए इन सैम्पल, किसी में हमको डीएनए फाइंड आउट करना है, एनालाइज द जेनेटिक पैटर्न विच अपीयर्स इन द पर्सनस डीएनए। तो सारे चीज़ों मतलब जहाँ पे भी जेनेटिक वर्ड या जेनेटिकली आपको कुछ चीज़ डिटरमाइन करनी है तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जहाँ पे भी डीएनए इन्वॉल्व है दैट जहाँ वहाँ पे हमको साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो आपके क्राइम केसेस हैं जहाँ पे और दूसरे मेथड्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं सस्पेक्ट को, वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द सस्पेक्ट कैसा है, क्रिमिनल कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको साउदर्न ब्लॉटिंग की हेल्प से मिलती हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एज द नेम सजेस्ट, नेम से हमको क्या आइडेंटिफाई होता है कि इट इज़ अ टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस। आरएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग वाज डेवलप्ड बाय जेम्स एल्विन एंड जॉर्ज स्टार्क at Stanford University in 1979 and was named such by analogy to Southern blotting. Southern blotting के अपोजिट यहाँ पे Northern blotting कर दिया है ना। तो इस तरीके से ये आरएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं ये टेक्निक्स। तो यहाँ पे भी सेम एज साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है कि आरएनए पहले हम आइसोलेट करना पड़ता है। आरएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम सेवरल बायोलॉजिकल सैंपल्स। आप बहुत डिफरेंट तरीके से आरएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज से आइसोलेट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आरएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो वेरियस टिश्यूज, वेरियस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द सेम टिश्यूज से भी आप अलग अलग तरीके से आरएनए आइसोलेट कर सकते हो। और RNA is more susceptible to degradation than DNA। तो RNA आइसोलेशन प्रोसीजर थोड़ी सी टिपिकल होती है एज़ कम्पेयर टू DNA, और उसको आइडेंटिफाई करने और उसको आइसोलेशन करने के लिए आपको RNA से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी आपके ग्लासवेयर्स हैं, उनको RNA से आप पहले ट्रीट करते हो जिससे कि RNA जो इंजाइम है वो आपका RNA जो आपने आइसोलेट किया है वो डिग्रेड ना कर सकते। तो इसलिए जो भी आप आरएनए आइसोलेट करोगे उसको उसी तरीके से जो हमने अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर जेल कास्ट की थी वैसे ही कास्ट करना है हमको। कॉम की हेल्प से आपको वेल्स क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर क्रिएशन ऑफ वेल्स आपको आरएनए का सैंपल डालना है और यहाँ पे हम एक मार्कर्स भी डालते हैं जो आपके पास पहले से ही रहते हैं अवेलेबल, है ना। और उस अवेलेबल मार्कर्स क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट दे सेपरेटेड ऑन द जेल, है ना। और उस ये प्री डिफाइंड होते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इसी पोजीशन पे आएगा, इतना मॉलिक्यूलर वेट का बैंड इस पोजीशन पे आएगा। तो इस तरीके से जब हम आरएनए को सेपरेट आउट करते हैं तो जहाँ पे भी बैंड्स आ रहे हैं तो कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ मार्कर,
मार्कर से कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा बैंड है वो किस मोलिकुलर वेट का है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स आर available on the market so that we can identify the molecular weight of particular band of RNA. So resulting gel following after the electrophoresis run, ये आपकी एक रिजल्टिंग जेल है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको इस तरीके से आपकी जेल कास्ट होते हुए या जेल सेपरेट होते हुए दिखेगा जिसमें आरएनए सैंपल सेपरेट हो चुके हैं। फिर उस जेल को हम क्या करेंगे, ब्लॉट ऑन ए नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन और फिर नाइट्रो नाइलॉन मेम्ब्रेन पेपर बाय क्रिएटिंग द सैंडविच अरेंजमेंट। ये आपका एक सैंडविच टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें आपका डिफरेंट जो नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन है वो बीच में है और नीचे आपकी जेल है, ऊपर पेपर टॉवल्स हैं, फिल्टर पेपर्स हैं और उसके बाद आपका इस तरीके से नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ये जेल का जितना भी मटेरियल है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स। प्रोब्स की मदद से आपका क्या होगा कि जहाँ पे भी प्रोब स्पेसिफिक आरएनए हैं वो बाइंड हो जाएंगे प्रोब से, है ना, और बाकी जितने भी अननेसेसरी जो भी आपके प्रोब्स हैं और डीएनए आरएनए हैं वो आपके वॉश आउट हो जाएंगे। After that we will wash to remove the unbound probe, or then labeled probe is detected by autoradiography by accumulations or by accumulations reaction if a chemically labeled probe is used. In both the cases these results in the formation of dark band on a X-ray film. जब हम एक्सरे पे ये फिल्म एक्सपोज करते हैं तो आपको जहाँ भी स्पेसिफिक प्रोब्स बाइंड हैं वहीं पे ही आपको बैंड्स दिखेंगे एक्सपोज होते हुए, बाकी दूसरे बैंड्स आपको नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से नाउ द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द डिफरेंट सैम्पल्स कैन बी कंपेयर्ड। तो विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो आपका बैंड आया है वो किस मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आरएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स। सेम एज साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, बस हमको यहाँ पे डीएनए की जगह आरएनए यूज़ करना है और आरएनए स्पेसिफिक यहाँ पे हम प्रोब्स यूज़ करेंगे विच आर प्रीवियसली लेवल्ड विद सम रेडियो आइसोटोप्स। सो इस तरीके से एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। आरएनए के लिए भी आपको जो इस एप्लीकेशंस हैं इसकी कहाँ कहाँ है, टू स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जहाँ पे भी आपको जीन को एक्सप्रेशन देखना होता है वहाँ पे हमको आरएनए चाहिए पड़ता है, क्योंकि आरएनए में सिर्फ जितने भी जीन्स होते हैं सारे एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हम डीएनए की जगह आरएनए को चूज़ करते हैं। और सच एज एमआरएनए है ना, डिटेक्शन ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट साइज, कितने साइज़ का एमआरएनए है, स्टडी ऑफ आरएनए डिग्रेडेशन, अगर आरएनए डिग्रेड हो रहा है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, आरएनए हाफ लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। ऑफन यूज टू कन्फर्म एंड चेक ट्रांसजेनिक नॉकआउट माइस, कभी कभी हम नॉकआउट माइस, कभी कोई जीन को हम किसी माइस से हटा देते हैं तब भी हम ये प्रोसेस यूज़ करके आइडेंटिफाई मतलब चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर उस माइस के अंदर वो जीन है कि नहीं है। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के इसके एप्लीकेशंस हैं आरएनए की, जहाँ जहाँ भी आरएनए यूज़ होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स जैसे कि साउदर्न था, नॉर्दर्न था, वैसे ही वेस्टर्न इज आर टू डिटरमाइन द प्रोटीन। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग 1981 में आइडेंटिफाई हुई थी, इज ए इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक विच रिलाई ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ए प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ए प्रोब। तो यहाँ पे जनरली जो प्रोटीन के अगेंस्ट प्रोब यूज़ करते हैं दैट आर एंटीबॉडीज रेज्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। पहले हम उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं और उन एंटीबॉडीज़ को ही एज ए डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं टू अलाउ द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इन ए मिक्सचर ऑफ मैनी अदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे कि
वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो आपका, जैसे कि आपने साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा था, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। मतलब जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली आपका चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ पे हमारा वर्टिकली चार्ज ट्रांसफ़र होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पे आपका जिस भी साइड आपका नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड ट्रांसफ़र हो रहा था, वो भी हॉरिजॉन्टली हो रहा था, पर यहाँ पे हमारा वर्टिकली चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो STS पेज टेक्निक इज़ प्री रिक्वेस्ट फॉर द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ पे हमको वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत पड़ती है और STS पेज बनाना पड़ता है, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो STS का क्या फुल फॉर्म है? सोडियम डोडिकाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वहाँ पे सिर्फ अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, यहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जेल कास्ट होती है वो किसकी होती है? STS पेज। मतलब यहाँ पे हमें पॉलीएक्रिलामाइड्स का यूज़ करते हुए जेल को क्रिएट करना पड़ता है। इसकी पूरी एक डिटेल प्रोसीजर है कि हम कैसे जेल कास्ट करते हैं, कैसे जेल बनाते हैं, कैसे जेल को हम यहाँ पे पोर करेंगे, कैसे कितनी देर में सेट होगी। ये सारी प्रोसेस आपकी जेल STS पेज जब आप बनाते हो तब आता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये हॉरिजॉन्टली नहीं है। यहाँ वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो भी हमारी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है उसको हम यहाँ पे प्लेस्ड करेंगे और उसको फिर फर्दर हम जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अकॉर्डिंग टू दैट ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट दे विल बी सेपरेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेशन होगा उनका। तो प्रोटीन सैंपल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन STS पॉलीएक्रिलामाइड जेल। पॉलीएक्रिलामाइड जेल में वो पहले हम सेपरेट आउट करेंगे एंड इलेक्ट्रोब्लॉटिंग ट्रांसफर द सेपरेटेड प्रोटीन्स फ्रॉम द जेल्स टू द सरफेस ऑफ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। और इस तरीके से ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है और इसको हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक, पहले चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, अब नाउ वी आर अप्लाइंग चार्ज फ्रॉम दिस। सो जितना भी आपके प्रोटीन्स हैं वो आपके इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग और आफ्टर ब्लॉटिंग टेक्निक जो आपका ब्लॉटिंग पेपर है इज़ इनक्यूबेटेड विथ जेनेटिक प्रोटीन, है ना, जेनरिक प्रोटीन से आपका हम उसको थोड़ा सा इनक्यूबेट करेंगे, जैसे कि सच एज मिल्क प्रोटीन और बोवाइन सीरम एल्बुमिन। इसको हम एक्सपोज करने के बाद क्या होगा? विच बाइंड्स टू एनी रिमेनिंग स्टिकी प्लेस ऑन द नाइट्रोसेलुलोज। तो प्रोटीन जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड देन एन एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जो कि आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी कहलाएगी, इज एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज शीट एंड रिएक्ट विद द एंटीजन। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ होगी वो आपकी अगर इस प्रोटीन के ही इंटरेस्ट की है तो वो उससे बाइंड कर जाएगी, है ना, और ओनली द बैंड कंटेनिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड्स द एंटीबॉडी एंड फॉर्मिंग ए लेयर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो जो आपका ये बैंड्स जो कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में थे, जो ट्रांसफ़र हो गए थे, तो उनमें जो भी आपका स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होगी उस बैंड के अगेंस्ट, तो वो ही उस पे जाके बाइंड होगी। अदर टू बैंड्स ऐसे ही कुछ नहीं होगा उसके ऊपर एंटीबॉडीज़। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज़ को जब हम मतलब पूरा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को जब वॉशिंग स्टेप से आप जितने भी अनवांटेड एंटीबॉडीज़ हैं, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी वॉशिंग स्टेप से। और आफ्टर वॉशिंग फॉर द रिमूवल ऑफ नॉन स्पेसिफिकली बाउंड एंटीबॉडीज़ वन, secondary antibodies is added which specifically recognize the FC domain of primary antibodies। तो जो एंटीबॉडीज़ में जो FC रीजन होता है वो अगर जो भी आपका प्रोटीन था उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आपने ऐड की और वो अगर बाइंडेड फॉर्म में है तो FC रीजन से फिर आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ उसके ऊपर बाइंड हो जाएगी और दैट सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ इज लेबल्ड टू सम एंजाइम्स,
है ना, पहले से ही एंजाइम से वो लेबल्ड रहती हैं कि जब आप एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डालते हो तो इट सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट पहले कलरलेस था, इट बिकम्स कलर्ड और आपको कलर्ड रिएक्शन या कलर्ड बैंड एक फॉर्म होते हुए दिखेगा ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अगर रिएक्शन हो रही है, अगर एंटीबॉडीज उस बैंड से, उस प्रोटीन के बैंड से बाइंड है, तो प्राइमरी एंटीबॉडी पहले बाइंड होगी, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो कि पहले से ही लेवल्ड विथ सम एंजाइम्स है, एंजाइम्स विच आर which when we add some colorless substrate, then colorless substrate will become colored substrate और the band becomes colored, तो जिससे कि आप विजुलाइज इजीली कर सकते हो। एंड एंटीबॉडीज इज रेडियो एक्टिवली समटाइम्स लेवल्ड और कोवलेंटली लिंक टू ए रिपोर्टर एंजाइम विच अलाउज टू विजुलाइज द प्रोटीन एंटीबॉडी 1 एंटीबॉडी 2 कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम बैंड्स आर वेरी लाइट इन कलर एंड सम आर डीपली कलर्ड, तो दीज आर बाउंड विद द एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंटीबॉडीज, और इस तरीके से हम वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंड्स बाय कंपेयरिंग द मार्कर प्रोटीन्स। तो एप्लीकेशंस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना। इट इज़ यूज्ड इन HIV test. Western blotting is used to identify and distinctive test for the bovine spongiform encephalopathy. It is a one type of cow mat disease, है ना, जिसके कारण cow mat disease होती है। And some form of Lyme disease testing employ Western blotting. ये भी एक तरीके की डिसीज़ होती है जो कि एक बाइट्स के कारण टिक वाइट्स के कारण होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की डिसीज़ेज़ आजकल अस्थमा डिसीज़ेज़ एंड डिफरेंट टाइप्स की डिसीज़ेज़ दे आर आइडेंटिफाइड बाय द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स in which we have some changes in the protein sequence of our body, so that the particular specific protein related to that infections is increasing inside our body, and that protein we can identify by these type of techniques. So antigens are also, they are one type of proteins, and various types of antigens can be determined by this type of technique. So we can use these types of techniques for the detection purpose of DNA, RNA and various types of pathogens, various types of proteins. Hope you have understood. Thank you.